हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कुछ MSCET से रिलेटेड क्वेश्चंस। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज कंसिडर्ड एज ग्रीन सॉल्वेंट। अब ऑप्शंस क्या है देखो। फर्स्ट वन है CHCl3, बी ऑप्शन CH2Cl2, सी ऑप्शन सुपर क्रिटिकल CO2 एंड डी ऑप्शन CCl4। तो इसका आंसर है ऑप्शन दैट इज सी, सुपर क्रिटिकल CO2। what is the option of this one part? That is super critical CO2 now. Question number second, identify nanomaterial having all three dimensions. अब देखो क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई नैनोमटेरियल हैविंग ऑल थ्री डायमेंशंस। ऑप्शन फर्स्ट क्वांटम डॉट्स, ऑप्शन बी थिन फिल्म, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी नैनो वायर्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन डी ऑप्शन ए quantum dots. What is the answer of this question? Option A quantum dots. Question number third, which from the following nanoparticle catalysts is used as a photocatalysis? Option A TiO2, option B PD, option C PT, option D AU. Okay, again I repeat this question. क्या है? Which from the following nanoparticle catalyst is used as photocatalysis? फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? टिटेनियम डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन पैलाडियम, सी ऑप्शन प्लैटिनम, डी ऑप्शन दैट इज AU मीन्स गोल्ड. ओके, what is the answer of this question? That is option A TiO2 means titanium dioxide. Question number 4, which among the following statement is against to the principle of green chemistry? See again question, which among the following statements is against to the principles of green chemistry? Option A, use of biodegradable polymers help to clean the environment. Option B, use of renewable sources ensures the sharing of source resources by future generation. Option C, unnecessary derivatization should be minimized. Option D, deprotecting functional groups in organic reaction reduce the number of steps. इसका ऑप्शन जो है आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, deprotecting functional groups in organic reactions reduce the number of steps now. Question number 5, which of the following polymer is used in the manufacturing of drinking straws? ड्रिंकिंग स्ट्रॉ करने के लिए कौन सा एक्चुअली पॉलीमर यहाँ पे यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पॉलीप्रोपिलीन, बी ऑप्शन PET, सी ऑप्शन LDPE एंड डी ऑप्शन पॉलीस्टायरिन. यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है देखो, LDPE का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन. ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन ए पॉलीप्रोपिलीन. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड? क्या है क्वेश्चन नंबर 6? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड? बेसिक अमाइनो एसिड इसमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन एलिनिन, बी ऑप्शन टायरोसिन, सी ऑप्शन लाइजिन, डी ऑप्शन सेरिन. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज ऑप्शन नंबर सी लाइसिन. Question number 7, if side chain group R for amino acid is CH2OH, identify the amino acid from the following. What is the question number 7? If side chain group R for amino acid is CH2OH, identify the amino acid from the following. What is the options of this? Adenine, B option serine, C option proline, D option tyrosine. Answer of this question option number B serine. Question number 8, which of the following compounds does not develop intermolecular hydrogen bonding? क्या है क्वेश्चन नंबर 8? Which of the following compounds does not develop intermolecular hydrogen bonding?
Okay, what is meant by intermolecular hydrogen bonding? The bonding which is present between the two same or two different molecule. ओके अब ये मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? नॉर्मली अमोनिया होगा, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, आइदर इट मे बी अ HF also ना. ओके मतलब नॉर्मली इसमें H2O का कंटेंट होता है. ओके सो व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज साइक्लोहेक्सिल अमाइन, बी एलिन अमाइन, सी ट्राईमिथाइल अमाइन एंड डी है यहाँ पे डाइफिनाइल अमाइन. ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? द कंपाउंड डज नॉट डेवलप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसमें होता है ट्राईमिथाइल अमाइन. क्यों होता है यहाँ पे ट्राईमिथाइल अमाइन? क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो किस पैटर्न में होता है इसका स्ट्रक्चर? ट्राईमिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर होता है CH3, यहाँ पे हम C करेंगे यूज़. नेक्स्ट आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा हमारा CH3 ग्रुप और यहाँ पे और एक ग्रुप आएगा दैट इज़ अ CH3 ग्रुप ना. ठीक है तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ क्या है? यहाँ पे विच वन इज़ दैट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. यहाँ पे अब्सेंस ऑफ व्हाट हेयर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसकी वजह से इसका ऑप्शन क्या है? दैट इज सी ऑप्शन, ट्राईमिथाइल अमाइन. क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following has the highest boiling point? Which among the following has the highest boiling point? अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? प्रोपेनवनॉल, सेकेंड पे ऑप्शन इथेनॉइक एसिड, सी ऑप्शन प्रोपेनोन एंड डी ऑप्शन प्रोपेनॉल ना. ठीक है अब यहाँ पे क्या है देखो क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका जो आंसर है दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच वन इज़ दैट? इथेनॉइक एसिड. एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज हाई होता है. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑफ दिस. Which of the following compounds on reaction with Grignard reagent allowed by hydrolysis forms tertiary alcohol? Which of the following compounds on reaction with Grignard reagent followed by hydrolysis forms a tertiary alcohol? Okay, तो इसके ऑप्शंस क्या है देखो. फर्स्ट वन प्रोपेनॉन, बी ऑप्शन है इथेनॉल, सी ऑप्शन है मिथेनॉल एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रोपेनॉल. ठीक है अब यहाँ पे क्या है देखो क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस होके टर्शरी अल्कोहल क्रिएट करता है. तो इसमें जो टर्शरी अल्कोहल क्रिएट करता है वो होता है हमारा प्रोपेनॉल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस.